I think India should look to play Kuldeep Yadav. Of course, Jadeja will bowl with him. So two spinners with three seamers would be the kind of perfect match for this game. Let's see if conditions will change or favor the spinners. But even if it doesn't, I think these are two capable bowlers who can take wickets on any wicket. When you last played alongside Kumble out of the 20 English wicket, you both scrapped 11 of them. So, should India start with a spinner A leads or not? Well, I think that was a very unique decision at that point of time. Giving the conditions in Headingley, it was as green as we are standing on this grass. The pitch was very green, hard pitch, but management decided we'll go with two spinners and and two fast bowler, and Sanjay Bangar will bowl as well. So we went with five our best bowlers who can pick wickets. And that's what matter in the end. You have to back those bowlers who can pick wickets on any condition or any kind of wicket. So that match, it's been one of those top match which obviously I remember for long period of time. Beating them in Headingley was a big task, and of course, going with two spinners. Nobody actually thought about how and why. India is playing two spinners in Headingley in such condition, but you have to back yourself and back your instinct. You feel that these are our four best or five best bowlers who can pick wickets. So that's exactly what they gone through, and I think Team India should also look to pick those bowlers who can pick wickets in any situation or any kind of pitch. With Shardul Thakur scoring a century in the Yeah. Intra squad warm-up game in Pakenham and taking wicket, he now the front runner when it come to the team deciding between him and Nitish Reddy. I think it'll be important to see who's bowling better. I think India need a bowler who can bat a bit. India have got batting lineup till seven, and at number eight, you need to see who can bowl and get those wickets for you and bat a bit, not someone who bats and bowl a little bit. I think that's where Shardul will have a edge on Nitish Reddy, in my view. I think Nitish is a proper batsman who can definitely bowl, but we have not seen him bowling in the IPL much. Um, they'll have to find out. Gautam is there; he's very capable coach, and I'm sure he'll take the right decision by picking the right one. Who's bowling better in those conditions, and who could be more useful for team. Sarfaraz Khan scored a 70 balls 100 on day two, which has gathered a lot of praises. In your opinion, was his acceleration from the squad justified given the kind of performance he has put in red red ball and cricket recently? One example being a 100 against Kiwis and Bangalore when India was struggling against the Kiwi Queens. Well, he's a very promising cricketer, someone who scored a lot of runs to get back into the Indian squad in Indian scheme of thing, and it's very unfortunate. He's not there in the team. I was a bit shocked not seeing his name in the squad, but good thing about is it's a learning curve for him. I'm sure he will come back strong. Wherever he's playing, he's scoring runs, and he's got that will to make a comeback. That's what is more important. Whatever has happened, we all cannot change. But whatever is coming, he can definitely work towards it and make a comeback. He's still very young, and all I can say, don't be disheartened. uh, don't worry, you'll get your dues, if not today but tomorrow. You see the example of Karun Nair, who scored 300 runs against England, and after that he never got too many opportunities, and then he had to go from a very lean patch, and now he's back in England with the team. So never lose that hope, and continue to work, continue to get better at your game as a person. You will get there.
As per report that surfaced after the end of India interest quiet game on Sunday, Bumrah want victorious. It is something to worry about for the team, or is it just Bumrah just warming himself up to the week of week with the tools in hand? Well, Jasprit Bumrah, he's that kind of individual. He knows his body, when to push himself or when to kind of take a break a bit, and of course he understands his body better than anyone. And he's a brilliant athlete. India needs him in any test matches and every test matches. To keep him fresh for the whole series would be the key. And I wish and I hope that he continue to be fit and continue to play cricket for Team India. And I hope he plays all the 5 test matches in England. The batter did well. Both Gill and KL Rahul scored half centuries. Bowler looked in good shape. Does this side look confident now to and the series been waited since 2007? I didn't get your question. The batter did well. Both Gill and KL Rahul scored half century. Bowler looking in good shape. Does this side look formidable enough to the end series win wait since 2007? Well, it's a great opportunity for this young Indian team who's touring to England. Of course, they have done well, in the previous occasions, big occasion in Gaba, if I correctly remember that game where Shubman and Rishabh Pant, they scored heavily to win that game from Australia. So I think one thing is there, the talent is there, and of course it's a great opportunity for the young team to showcase their talent. And I must say that we should not start judging them even if they lose, but I think it'll be a great learning curve for all of them, and if they go on to win the series, it'll be a big thing, and I hope they do so. 2 दिन पहले यहाँ पे पंजाब के मुख्यमंत्री आए थे पल्टन पार्क को लेकर उन्होंने कहा स्पोर्ट्स हब बनाने जा रहे हैं क्योंकि जलंधर तो पहले ही स्पोर्ट्स हब है तो इस दौरान उन्होंने लुधियाना में भी कहा था आपको लेकर कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और आप कैसे देखते हैं इसको क्या नाम देना चाहिए और लग रहा है कि जो इंटरनेशनल मैच जो हुआ था काफी समय हो गया है जलंधर में हुए तो इंटरनेशनल स्टेडियम पहले से बेटर तैयार होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले तो हमारे माननीय सीएम साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पंजाब के बारे में सोचा, कि स्पोर्ट्स के बारे में सोचा, क्योंकि बहुत सरकारें आई हैं स्पोर्ट्स को ना लास्ट विषय रखती हैं, और क्योंकि मान साहब खुद स्पोर्ट्स लवर हैं, तो बहुत स्पोर्ट्स से प्यार करते हैं, चाहे यूसेट की क्रिकेट हो या वॉलीबॉल हो, कोई वो मैच ऐसा नहीं है जो वो नहीं देखते हो, हॉकी हो, हर स्पोर्ट्स को वो खुद देखते हैं। मैं तो एक दिन थोड़ी लेट मिला था, तो वो बास्केटबॉल का मैच जो अमेरिका में चलता है वो भी लगा के बैठे हुए थे, तो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स के शौकीन है। और जब मैं उनसे मुलाकात हुई तो यही गुजारिश थी कि किसी तरीके स्पोर्ट्स को जो है दोबारा वैसी बुलंदियों पे पहुंचाने की जरूरत है पंजाब को, वैसे ही हमें एथलीट पैदा करने की जरूरत है जिन्होंने देश भर में नाम रोशन किया पंजाब का। और उसके लिए जो सबसे पहली मुहिम है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वैसा कि हमारे लड़के यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाएं, और वहाँ अगर ओलंपिक में या कहीं बड़े मंच पे अलग फैसिलिटीज अगर देखते हैं तो वहाँ पे उनको शौक ना लगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया। यहाँ पे जलंधर में बल्टन पार्क को अब जो जलंधर स्पोर्ट्स हब के रूप में हम देखने जा रहे हैं कि ये एक बहुत बढ़िया मुहिम है। यहाँ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी ही नहीं, बाकी की और फैसिलिटियों के ऊपर भी काम होगा। और जो राशि जो उन्होंने उस दिन बात करी है 76 करोड़ से ऊपर यहाँ पे लगेगी जलंधर में स्पोर्ट्स के लिए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये तो शुरुआत है, तो ऐसा ही हर एक बड़े डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा हब बनाने की जरूरत है, और ये मैंने मांग उनके सामने रखी है। और हर काम जो है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये शुरुआत हुई है। अमृतसर की उन्होंने उस दिन बात करी थी कि अमृतसर में भी एक स्टेडियम ऐसा दिया जाएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि बहुत डिमांड है, और मुझे लगता है कि अमृतसर में स्टेडियम होना चाहिए। और साथ ही साथ और स्पोर्ट्स की फैसिलिटी जो है वो इनहेंस होनी चाहिए। वैसे लुधियाना में
स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ जहाँ ऑलरेडी बनी हैं उसको इन्हेंस करना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि कुछ नया बनाने की ज़रूरत है। जो ऑलरेडी चीज़ें बनी हैं उसको और बेटर कैसे किया जा सकता है और इन्हेंस कैसे किया जा सकता है, और ताकि वो काम जो जल्दी भी होगा, नया बनाने जाएंगे तो बहुत समय भी लगेगा। जहाँ बिल्कुल नहीं है फैसिलिटीज़ वहाँ नया बनाएंगे, और जहाँ फैसिलिटीज़ ऑलरेडी हैं उसको बेटर करेंगे। तो ये बहुत शुक्रिया अदा सीएम साहब का। और बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, मेरे से इससे मुझे लगता है कि बड़ी खुशी मेरे लिए कोई और नहीं हो सकती कि पंजाब में स्पोर्ट्स अपलिफ्ट हो रही है। दुनिया भर के आपने स्टेडियम देखे हैं, तो अगर बात की जाए भारत के स्टेडियम को लेकर, अब मुल्लापुर जो स्टेडियम तैयार हुआ है, लग रहा है ऐसा स्टेडियम ही जालंधर में होना चाहिए। जलंधर में देखिए जो फैसिलिटीज वाइज तो उसी तरीके का स्टेडियम होगा। मुल्लापुर एक इंटरनेशनल स्टेडियम है और यहाँ पे भी फैसिलिटीज वैसी ही होंगी, क्योंकि अब नए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो स्टेडियम के जो रिक्वायरमेंट हैं वो उसके ऊपर सारी हमें समझ है, और वो सारे काम यहाँ पे करवाए जाएंगे ताकि हमारी जो जनरेशन है आने वाली, उनको वो हर तरीके की फैसिलिटीज प्रदान पहले ही की जाए, ताकि उनको कहीं जाके ऐसा ना लगे कि ये कहाँ आ गए हम। तो जलंधर में भी डेफिनेटली उसी तरीके के स्टेडियम आपको देखने को मिले। क्योंकि आप भी राज्यसभा सांसद हैं, पंजाब के हालात से काफ़ी आप वाकिफ़ हैं, तो क्योंकि आज मिक्का सिंह जो थे बॉलीवुड सिंगर, उन्होंने भी चिंता जताई है पंजाब के हालातों को लेकर। इन फ्यूचर जो महिला का मर्डर हुआ है, उसके बाद आरोपी यहाँ से बेशक भाग गया है, इसका एसएसपी ने भी खुलासा किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि सीएम साहब को अपील की है कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो पंजाब के हालात हैं उनमें सुधार होना चाहिए। देखिए ये हम सब नागरिकों की एक मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें पंजाब को खुशहाल बनाने के लिए। और जब कोई ऐसे केसेस होते हैं उसके लिए सरकार बैठी है, वो सरकार काम जो अपने तरीके से करती है वो करेगी, और पुलिस जो अपने तरीके से काम करती है वो करेगी। बट यू नो एज ए पंजाबी, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं तो यही चाहूँगा कि हमारी जो पंजाब की सभ्यता है वो प्यार बांटने वाली है, खुशहाली वाली है। तो यहाँ पे भाईचारा जो है वो हम वैसा ही देखना चाहेंगे जो हमने कई सालों से देखते आ रहे हैं, और कुछ लोग अगर उसको खराब करने की कोशिश करते हैं तो फिर उनको दंड भी मिलेगा। जैसे मुहिम छिड़ी हुई युद्ध नशे विरुद्ध, इसे लेकर जो नशा तस्कर हैं या आपराधिक लोग हैं, वो अब उनके दिलों में डर है कि सरकार जो कड़ी कार्रवाई कर रही है और प्रॉपर्टीज उसकी डिमोलिश कर रही है, सील कर देती है, और जो कानूनी कार्रवाई है, जो मामले दर्ज हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि इसके बावजूद जो ऐसी घटनाएं हो रही है आपराधिक, जैसे महिला को मार दिया गया और इससे पहले धमकी दी गई थी, उसके बाद कई इन्फ्लुएंसर और हैं जिनको धमकियां दी गई हैं, तो इन पर जो नकेल कसनी चाहिए सरकार। मेरे ख्याल से इसके ऊपर काफ़ी ऑलरेडी तेजी से काम चल रहा है। और अगर आप पंजाब के किसी भी अधिकारी से, पुलिस अधिकारी से बात करेंगे तो वो भी आपको यही बात बताएंगे कि इसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी बातें हो रही हैं, काम चल रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मीडिया में नहीं आती हैं, बट बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मीडिया में नहीं आते हैं। तो सरकार जो है वो हर तरीके से हर पंजाबी के साथ है, ये तो मैं कह सकता हूँ। सर सीएम साहब ने कहा था जलंधर को भी एक जो है क्रिकेट स्टेडियम मिलेगा, इंटरनेशनल स्टेडियम मिलेगा, उसको लेकर क्या वर्क चल रहा है और कितना समय लग सकता है? देखिए ये उन्होंने निर्देश किए हुए हैं, और ये अब यहाँ पे फंड भी ऑलरेडी पड़े हुए हैं, और उस फंड को जितने जल्दी से हम यूटिलाइज करके उसको बनवा सकें, ये तो हमारी सबकी एक जिम्मेदारी बनती है। और बार बार हम डीसी साहब को कहेंगे कि इसको जल्दी से टेंडर करें और वहाँ पे काम शुरू करवाया जाए। बल्टन पार्क में तो ऑलरेडी क्रिकेट के साथ जो लगती हुई इमारत है उसमें काम शुरू हो भी गया है, स्प्रिंकलर का काम शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही हमें 1 साल में ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो उस दिन अनाउंस करके गए हैं सीएम साहब, वो देखने को मिलेगी। कोचेस के बाद बेस्ट टू बेस्ट कोचेस होने चाहिए, प्लेयर्स के लिए काफी। इसमें काम शुरू हो भी गया है, स्प्रिंकलर का काम शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही हमें 1 साल में ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो उस दिन अनाउंस करके गए हैं सीएम साहब, वो देखने को मिलेगी। कोचेस के बाद बेस्ट टू बेस्ट कोचेस होने चाहिए, प्लेयर्स के लिए काफी बार देखा जाता है प्लेयर्स को दिक्कत होती है कि बेस्ट कोचेस नहीं है। बिल्कुल, एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा कोच होना बहुत ज़रूरी है हर खिलाड़ी के पास। और आई थिंक दैट इज़ समथिंग यू नो वी ऑल नीड टू वर्क ऑन इट। जो क्रिकेट की अगर बात करूं या फिर हॉकी की बात करूं, बहुत सारे दिग्गज यहाँ पे हैं, और बाकी स्पोर्ट्स के दिग्गज जो यहाँ पे हैं जिनको लाना चाहिए वापस, टू गिव समथिंग बैक टू द गेम। क्योंकि अगर वो सिखाएंगे बच्चों को
तो बहुत अच्छा होगा। और मैं तो यही अपील करूंगा, जो पुराने हमारे दिग्गज हैं हर स्पोर्ट्स के, जिन्होंने नाम रोशन किया है देश का, वो आगे आएं और वो थोड़ा सा ये जिम्मेदारी लें, क्योंकि ये मुहिम तभी पूरी होगी अगर हम सब इसमें अपना अपना योगदान देंगे। अगर हम कि अपने आप को पीछे रखते हैं कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने क्यों करना है, तो फिर शायद वो काम में डिले हो सकता है। तो मेरी तो यही सबसे एक गुजारिश है कि आप आइए आगे और अपने आने वाली जनरेशन को सिखाइए। सर, अगर बात की जाए कनाडा और भारत में फिर से रिश्तों में सुधार हुआ था, लेकिन अब कई खबरें सामने आ रही है, ट्वीट भी सामने आ रहे हैं कि वहाँ के बच्चों का जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों पर बच्चे जो हैं हिट कर रहे हैं, वहाँ पे भारतीय झंडा लगा हुआ है। इसे लेकर कैसे देखते हैं कि रिश्तों में ये जो सुधार आया था, इसको फिर से खराब करने की कोशिश है? देखिए, हर वर्ग में, हर क्षेत्र में हम देखते हैं बहुत अच्छे लोग हैं और कुछ उनमें शरारती लोग भी होते हैं और उनका काम है कि शरारत करनी है हर बार। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कैन बी ए बेटर प्लेस फॉर एवरीवन इफ वी स्प्रेड लव, कि अगर हम एक दूसरे से ईर्खा या ये शत्रु बन के चलेंगे तो फिर इट्स नॉट अ प्लेस टू लिव। देन आई थिंक जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो बच्चे जो कर रहे हैं उनको तो पता भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी बड़ों की जिम्मेदारी बनती है और उनके परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको क्या बताया क्या जा रहा है। तो आई थिंक ये हम जैसे कोई किसी पेड़ को लगाते हैं, वो जब बीज हम लगाते हैं तो बीज वैसा लगाओ कि प्यार का बीज लगाओ। तो मेरी तो यही गुजारिश है। और ये जो हुआ है इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट।